those who have joined, have you done some numericals on thermodynamics? We have done a lot of numericals on thermodynamics. Have you done something? Is the board clear? Aryan, tell me, is the board clear? Yes, ma'am. Aryan, tell me. Okay. We are starting kinetic theory of gases. लेफ्ट में कर दीजिए. क्या क्या? थोड़ा सा लेफ्ट में कर दीजिए. थोड़ा सा लेफ्ट में. थोड़ा सा लेफ्ट में कर दूं. Is it clear now? हो गया? Yes. ना और लेफ्ट करो या और लेफ्ट करो? अब ठीक है मैम. ठीक है. Okay, we are starting the next chapter, that is your kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases means you are having the starting as your gas equation, ideal gas equation. Yes, anyone who can tell me what is our ideal gas equation? We have done it earlier also. Is equal to nRT. Ma'am, PV equals to nRT. PV is equivalent to nRT. ठीक है? PV is equal to nRT. R, what is R here? Ma'am, What is constant. R here? Gas constant. Reynolds. You name it as gas constant. नहीं, Reynolds number is something different. What is R here? Universal gas constant. Rydberg constant. Rydberg constant is something different. 3 R are there in your syllabus. One is your Rydberg constant. One is your gas constant. Universal gas constant. Universal gas constant. Universal gas constant. R is universal gas constant. R आपका 3 times syllabus में है. Universal gas constant. But you are having another R, that is your Rn. This is your Reynolds number. Don't confuse here. One is your Reynolds number. Reynolds number is in fluid dynamics. Next you are having Rydberg constant. R is for Rydberg constant. ये Rydberg constant कहाँ आता है? Rydberg constant आपका जो लैम और बार्मेन, हम ये केमिस्ट्री में आता है. लाइमन बाम और पास्किन सीरीज वेवलेंथ के वेवलेंथ और ये सीरीज में जो वेवलेंथ की इक्वेशन आता है उसमें आता है Rydberg constant. Don't confuse here. This is your gas constant. PV is equal to nRT. R is equal to gas constant. Then you are having Boltzmann constant here. Boltzmann constant क्या है? Kb. Kb is your Boltzmann constant. केमिस्ट्री में कितना सीखे हो बताओ? Boltzmann constant. Boltzmann constant is equivalent to R. केमिस्ट्री में आया नहीं अब तक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. आया नहीं तो R by N. What is N here? N is your Avogadro number. क्या आ चुका है? Avogadro's number. एवोगाड्रो नंबर तो नहीं कर लिया नहीं बट आया. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं किया. Avogadro number आ चुके हैं. R is your gas constant. R by N is your Boltzmann constant. ठीक है? PV is equal to nRT is your gas equation. और इसमें से आपका कितने गैस इक्वेशंस है? वन इज बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ आपको पता है केमिस्ट्री में. पीवी इज कांस्टेंट. यस और नो? पीवी इज कांस्टेंट. P is inversely proportional to volume. Boyle's law. Yes or no? V is inversely proportional to pressure. Charles law क्या है? Charles law पढ़े तो होंगे ना केमिस्ट्री में. P is directly proportional to temperature. V is inversely proportional to temperature. ये चार्ल्स लॉ है. V is inversely proportional to temperature. P is inversely proportional to volume. Directly proportional. Boyle. Yeah. V is directly proportional to temperature. V by T is constant. चार्ल्स लॉ. मैम V by T constant होगा तो V is directly proportional होगा ना फिर. V is directly proportional to T. This is your Charles law. Okay. These are the for chemistry. We don't have. ठीक है. But gas law is based. ये all are derived from gas law. My main name is universal gas constant. Perfect gas equation. हमारे पास जो syllabus में perfect gas equation and universal gas constant. The student should know. And Boltzmann constant will require it. And Avogadro's number. ये लॉज हमारे पास नहीं है सिलेबस में, बट इट इज रिलेटेड टू दीज लॉज. ठीक है. आइडियल गैस इक्वेशंस के पास है हमारे पास काइनेटिक थ्योरी. काइनेटिक थ्योरी में क्या क्या टेल मी. मैम बॉयल्स लॉ एंड
What was the second law? Boyle's law, Charles law. Charles law, chemistry department will cover it. Don't worry, chemistry department का main theory है. They will do it. Physics में हमारे पास ideal gas equation we have taken from chemistry department, universal gas constant and Boltzmann constant, Avogadro's number. ये 4 things we have taken from chemistry. They will cover it. ठीक है? हमारे पास जो है वो सारे कुछ assumptions है. इसको आप of kinetic theory. Kinetic theory का कुछ assumptions हैं. These are total 7 assumptions, theoretical assumptions हैं. ये आप normal life में जाने सुने भी होंगे. Number 1 is all gases consist of molecules. Do you know it? All gases consist of molecules. The molecules are rigid, elastic spheres. First one I am reading. All gases consist of molecules. The molecules are rigid, elastic sphere, identical in all respects for a given gas and different for different gas. मतलब all molecules are rigid, elastic spheres. All gases consist of molecules and all these molecules are rigid elastic spheres, identical in all respects. Identical in all respects. Okay, like this, you are having 7 assumptions. Identical in all respects. For a given gas. This is second assumption. This one is first one. For a given gas. First one. First assumption is all gases consist of molecules. These molecules are rigid elastic spheres. They are identical in all respects. For a given gas. So different gas. Suppose carbon dioxide है. Carbon dioxide का जो molecules होंगे, they are identical in all respects. They are rigid elastic spheres. If it is oxygen, तो oxygen का अपने के अंदर सारे identical होंगे. But carbon dioxide का molecule will not be similar to oxygen. Are you hearing? They are identical in all respects for a given gas and different for different gases. If the gases are different, then the molecules nature will be different. ठीक है? Second one, the size of molecule is negligible compared with the average distance between the molecules. Size of molecule is negligible. Second assumption, size of molecule is negligible. In comparison with the average distance between them. Suppose you are having 2 molecules. Let's see, you are having 2 molecules. इनके बीच में डिस्टेंस है, तो ये नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, इनके रेडियस ज्यादा लग रहे हैं. These molecules size is neglected in comparison to the distance between them. Distance between them is d. Size इसका radius is small. So radius is much more smaller than the distance. For all molecules, the size of the molecule, radius means उसका size आ जाएगा, volume आ जाएगा radius में. So it is smaller than the distance, average distance between them. ठीक है? This is the second one. Is it clear? Second one is clear? Yes or no? मैम ये सेम पॉइंट हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, बट उसमें ऐसा ही था. उसमें एनसीईआरटी बुक में तो ऐसा ही था, बट मैम ने लिखवाया था कि the volume of the molecules of a gas is negligible compared to the volume of the container. हमारे पास साइज है, हमारे पास वॉल्यूम नहीं, साइज है. साइज मीन सरफेस एरिया भी आ सकता है, वॉल्यूम भी आ सकता है. ये सेम काइनेटिक थ्योरी आपका केमिस्ट्री में है. ये चैप्टर एक्चुअली हम लोग फिजिक्स वाले नहीं पढ़ाते, बट केमिस्ट्री पर्सन्स आर लेट दिस ईयर. दे हैव नॉट स्टार्टेड इट, अदरवाइज यू डोंट टीच इट. क्योंकि द सेम थिंग इज देयर इन केमिस्ट्री. थर्ड वन आई एम टेलिंग, द मॉलिक्यूल्स आर इन ए स्टेट ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम मोशन. मॉलिक्यूल्स कभी शांत नहीं बैठते हैं. Just like you, in the absence of teachers, they are in continuous random motion. Molecules are in continuous random motion.
they don't sit silently, continuous random motion. Actually, sitting at home you have forgotten, but your natural behavior is to move. When you come to school, you look more smart. I think so. Yes or no, Aryan? If you come to school, if there is a games period, there is a lunch break, your activeness increases. Yes, ma'am. इसीलिए स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ माना जाता है. ठीक है, that you have missed. Okay, next. During the random motion, the molecules collide with one another and with the walls of the vessel. During random motion के time, during random motion, just like you all, during lunch break, you take the random motion and you collide with smaller children. During random motion, the molecules collide with each other. आपस में टकराते हैं, collide with each other, and the walls of the container. They collide with each other and also they collide with the walls of the container during this random motion. This is the fourth one. Fifth one is the collisions are perfectly elastic. Okay? And there are no forces of attraction or repulsion between the molecules. Collisions are perfectly elastic. लिया हुआ है. These are assumptions. We assume that collisions are perfectly elastic. You all know perfectly elastic. E value कितना होता है? Collisions are perfectly elastic. Tell me anyone. What is the E value? Equals to E is 1. equal to 1. E is equal to 1. Collisions are perfectly elastic. Next one you are having. Between two collisions, a molecule moves in a straight path with a uniform velocity. दो collisions के बीच में, between two collisions, the molecules move with a straight path. Move in a straight path. Straight path means without acceleration. Straight path. Obviously with uniform velocity. Between two collisions, the molecules move in a straight path with uniform velocity. The collisions are almost instantaneous. जैसे हमारे स्कूल के लंच ब्रेक वाला कॉरिडोर एग्जैक्टली सेम है. बहुत जल्दी जल्दी बच्चे कोलाइड करके फिर भाग जाते हैं. जब टीचर आते हैं कौन किसको गिराया पता ही नहीं चलता. कोलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस. आर्यन कभी हुआ है ऐसे स्कूल लाइफ में? बहुत तेज भाग रहे थे, बच्चों को कहीं कोलाइड किए हो? सबके लाइफ में होता है. Sometimes you collide. This point, collisions are almost instantaneous. जिस टाइम पे collision होता है, that is negligible compared to the time of the path between the two molecules. Fifth one. Sixth one. Between two collisions, the molecules move in a straight path with uniform velocity. Suppose ये दिखाई जा रहे हैं, ये molecule, यहाँ एक molecule है, यहाँ molecule, ये इसको गया, इसके साथ टकराया, टकराने के बाद suppose ये अपने पास से डाइवर्ट हो गया. ये ऐसे जा रहा था ना, इसको ऐसे जाना चाहिए, वो ऐसे गया, तो वो स्ट्रेट पाथ में विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी गया बिटवीन टू कोलिजन्स. नहीं तो यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट पाथ में गया, इसको टकराया, फिर आगे यहाँ इसको टकराया. मतलब ये आई एम टेलिंग दिस वन इज हियर, वन इज हियर, वन इज हियर. ये जो पाथ है उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है. इज इट क्लियर? इट इज नॉट एन मैम जो ये पूरा पाथ है, मैम जो पूरा पाथ है, इस पूरे पाथ में वेलोसिटी कांस्टेंट है. पूरे पाथ नहीं, दो कोलिजन्स के बीच में जो पाथ है, ये रिलैक्सेशन टाइम है. तो आप आगे पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, वो रिलैक्सेशन टाइम है. यहाँ से यहाँ तक ये रिलैक्सेशन टाइम 1, यहाँ से रिलैक्सेशन टाइम 2. ये जो यहाँ से यहाँ तक गया वो इतने टाइम में, टाइम टू रिलैक्स. जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो, एक बच्चा यहाँ से लंच ब्रेक में जा रहा था, यहाँ एक बच्चे के साथ कोलाइड किया. We are not thinking about the second one. We are thinking about the first one.
फर्स्ट वन फिर गया, यहाँ थर्ड बच्चा है, ये फर्स्ट स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ कोलाइड किया, इसका क्या हुआ, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस। हम इन दोनों के बीच में जो रास्ता है उसमें वो कैसे गया, उसमें वो स्ट्रेट गया और विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी गया और रिलैक्सेशन टाइम टॉल है। ये आप आगे 12th में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, नहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, विल रीड इट। रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है द टाइम टू रिलैक्स बिटवीन टू कोलिजन्स, नाम ही दिया हुआ है इसका रिलैक्सेशन टाइम, मॉलिक्यूल्स रिलैक्स इन बिटवीन दिस। आप रिलैक्स नहीं होते, आप तो भागते हो, ये रिलैक्सेशन टाइम है बिटवीन कोलिजन्स, ठीक है। Next, last one. In spite of the molecular collision, the density remains uniform throughout the gas. 8 total 8 है, यानी जो assumptions हैं, density remain constant. चाहे कितने भी collisions है, कुछ भी है, total density of the gas remains constant. Density remains uniform throughout the gas. These are all 8 assumptions. Again, I'm reading from the first one. All gases consist of molecules. The molecules are rigid elastic spheres. They are identical for a particular gas. Second, size of the molecule is negligible in comparison to the distance between them. Average distance between them. Molecules are in a state of equilibrium, a state of continuous random motion, no equilibrium, state of continuous random motion. During the random motion, they collide with each other, they collide with the container walls. Next, the collisions are perfectly elastic. Between two collisions, a molecule moves in a straight path with uniform velocity. Collisions are instantaneous or density remains constant. These are the kinetic theory of an ideal gas. Total 8 assumptions. इसी के नाम ही kinetic theory है और ये total 8 assumptions है, ठीक है। Never it will be asked in any exam to state all assumptions, but you should understand it. Examination point of view में इसको question नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन पैटर्न्स हैं इसमें अगर एमसीक्यू होता, फुल एमसीक्यू होता तो क्वेश्चन आता, बट सेकंड टर्म इज नॉट फुल एमसीक्यू. सेकंड टर्म आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू आर हैविंग 5 एमसीक्यू ओनली, 5 एमसीक्यू. उसके बाद 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन यू आर हैविंग. PT2 second term is something different, CBSE will give, but PT2 is this one. Those who have joined today for PT2 question pattern. Could you repeat once again? PT2 में आपका 5 MCQ आएगा. Out of 6 you have to do 5. 2 questions you will do out of 4. नहीं, 3 questions you will do. 2 marks 3 questions out of 4. 3 marks 3 questions out of 4. 5 marks 1 question out of 2. आया समझ में? आपको यहाँ 6 क्वेश्चंस मिलेगा, 5 करना है, यहाँ 4 मिलेगा, 3 करना है, 4 मिलेगा, 3 करना है, 2 मिलेगा, 1 करना है. 5 मार्क्स में मैम मतलब हर पार्ट में ऑप्शंस हैं? हर पार्ट में ऑप्शन है. सेक्शन ए में एक क्वेश्चन ऑप्शन है, यहाँ एक क्वेश्चन ऑप्शन है, यहाँ भी ऑप्शन है, यहाँ भी ऑप्शन है. हर पार्ट में आपको एक एक क्वेश्चन ऑप्शन है, ठीक है. Those who are strong in numericals, they should do the numerical portion. Those who are strong in theory, you can do theory portion. Theory numericals से एक मिक्स दिया हुआ है. ये तो अटेंडेंस हो चुका है नहीं, 12 भी अटेंडेंस. yes, ठीक है. Is it okay? Now we are coming to pressure of a gas. Pressure of a gas is a long derivation. अटेंडेंस आपका कंप्यूटर साइंस पीरियड में आ चुका है. यू आर गौतम, टेल मी. अरे गौतम, बहुत ही बच्चे एब्सेंट हैं, इसीलिए आज सारे ऑफिस की तरफ से सबके पास कॉल जाएगा. पेरेंट्स विल बी कॉल्ड. बेटर होता कि बच्चे ज्वाइन कर लेते. आई हैव गिवन ए मैसेज.
33 स्टूडेंट्स आर देयर. ओके, वेरी गुड. फर्स्ट टाइम, क्योंकि आज कॉल जाने वाला है नीचे से. मैम हैज ऑलरेडी टेकन अटेंडेंस. Excuse me, वी ma'am. हैव सेट. यस. Ma'am, I was not there in the first class. व्हाट्स योर नेम? Ma'am, Sahil Sharma. साहिल शर्मा, तुम मेरे क्लास में कब अटेंड किए हो? फिजिक्स में तो कभी भी नहीं थे आप. Ma'am, मैं था. कभी भी नहीं हो. मेरे पास पूरा अटेंडेंस में डाउनलोड करके रखी. योर नेम इज नेवर सीन हियर. सिर्फ 15 बच्चों के नाम है जो रेगुलर है और किसी का भी नाम नहीं है इसमें. You are joining out of compulsion. We have already given a letter will be issued to your parents that you will not able to attend next term exam. Even PT2 भी आपके लिए बंद हो जाएगा. 11th A, I don't know what's the problem. We are not attending classes regularly. Only 15 students will be regular. फर्स्ट क्लास लेट ज्वाइन कर. फर्स्ट क्लास क्यों नहीं अटेंड किए थे? आपको सारे क्लास अटेंड करना पड़ेगा. हम लेट ज्वाइन करी थी मैंने फर्स्ट क्लास. पता नहीं, मेरे पास फर्स्ट क्लास के अटेंडेंस में आज थे 26 थे. आई हैव ऑलरेडी फॉरवर्ड. फिजिक्स के क्लास में यहाँ से जाने के बाद डाउनलोड करोगे. अटेंडेंस इज ऑलरेडी डाउनलोडिंग हियर. आई विल टेक द डाउनलोड, बट यू हैव टू बी प्रेजेंट इन ऑल क्लासेस. ओके. प्रेशर ऑफ ए गैस इज ए लॉन्ग डेरिवेशन. इसमें से हम एक बॉक्स लेते हैं, एक बॉक्स पैटर्न, और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स एवरेज यहाँ कोलाइड किए. वी टेक देयर मोमेंटम, we convert it. यहाँ से कुछ molecules लेके they collide with these two walls, then you take the equation for pressure. That derivation is not in your syllabus. Directly they have given pressure is 1/3 rho v square. The formula is 1/3 rho v square. ठीक है? Formula is 1/3 rho v square. But this formula, ये आपका बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ भी है. दिस इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ है. ठीक है? ये मोलिकुलर वेलोसिटी है. ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ये जो v स्क्वायर है, ये जो v स्क्वायर है, दैट इज योर मीन स्क्वायर. मीन स्क्वायर वेलोसिटी. मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा है. रो इज योर डेंसिटी. इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में हटा दिया फॉर दिस ईयर. रो इज योर डेंसिटी, P is your pressure, V is your velocity, not about. ये आपका कोई वॉल्यूम नहीं है. हमेशा वॉल्यूम के बीच में ये वेलोसिटी आपका प्रॉब्लम करेगा. ये आपका मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसलिए एक बार दिया जाता है इसके ऊपर. इज द इक्वेशन क्लियर टू ऑल? इसका डेरिवेशन नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसका डेरिवेशन नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम नहीं करवा रहे. नहीं तो एक 5 मार्क्स से क्वेश्चन बनता. लेकिन इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम 5 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे. लास्ट क्लास जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे. मैम वो P तो प्रेशर ही है ना? हाँ, P इज फॉर प्रेशर. डेरिवेशन आएगी इस बार. आपको पूरा रिटन प्रैक्टिस करना पड़ेगा. वी आर हैविंग डेरिवेशन, सफिशिएंट डेरिवेशन दिया हुआ है, क्योंकि सेकंड टर्म इज डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है? इस चैप्टर में लेकिन डेरिवेशन आपको बहुत कम मिलेगा. नेक्स्ट वन इज योर काइनेटिक इंटरप्रिटेशन. नेक्स्ट इज योर काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. जो हम यहाँ लिख रहे हैं ना, ये आपका एग्जैक्टली सिलेबस में है. काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. आप कोई भी बुक लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि which one is there in the syllabus, which one is not there. I have given you the syllabus of top मीन one. स्क्वायर. मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब x y z तीनों एक्सिस में इसका वेलोसिटी लिया हुआ है. जो रैंडम मोशन, हाँ, vx स्क्वायर, vy स्क्वायर, vz स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3. ये आपका मीन स्क्वायर वेलोसिटी आया है. ठीक है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपका एवरेज लिया है. 1/3 ऑफ vx स्क्वायर, vy स्क्वायर, vz स्क्वायर. ओके हिमांशु, इज इट ओके? यस मैम. नेक्स्ट इज योर काइनेटिक And इंटरप्रिटेशन this ऑफ is a complete टेम्परेचर. जो minus आपका k only now. माइनस V नहीं, raised to the power minus. नहीं -2 नहीं, ये एक बार दिया हुआ है. बार मींस एवरेज. v स्क्वायर के ऊपर बार मींस एवरेज वैल्यू है कहीं से. बार दिया हुआ है, नॉट माइनस. ठीक है? काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में आपके पास क्या है, इसको आप टेम्परेचर के इक्वेशन में डालोगे. ठीक है? इसमें इसी इक्वेशन में आप टेम्परेचर एंट्री करोगे. आपके पास डेंसिटी क्या है? मास ऑफ द होल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. यस और नो? दिस इज मास बाय वॉल्यूम. सपोज मैंने इसको दो अलग अलग वॉल्यूम को मैंने v लिखा और इसको मैंने ऐसे v लिख दिया, थोड़ा सा चेंज करके.
मास बाय वॉल्यूम। तो इसी इक्वेशन में आप मास बाय वॉल्यूम पुट करो, 1/3 मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, और ये v स्क्वायर। तो इसके बाद आप क्या करो, यहाँ हाफ मल्टीप्लाई करो, माने 2 मल्टीप्लाई करो और 2 डिवाइड करो, 2/2, 2/2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2/2, ठीक है। तो m v स्क्वायर बाय v फॉर वॉल्यूम, दिस v इज फॉर वॉल्यूम। तो आपके पास इक्वेशन क्या हो गया, यहाँ 3 था पहले, तो आपके पास इक्वेशन क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर, एक हाफ mv स्क्वायर अलग हो गया, हाफ mv स्क्वायर अलग हो गया, और यहाँ आपके पास कितना रहा, 2/3। तो हाफ mv स्क्वायर इज योर काइनेटिक एनर्जी, दिस कैन बी इक्विवेलेंट टू 2/3 e, e is for kinetic energy, ek, 2/3 ek, this equation is giving you 2/3 ek, are you getting, are you getting or not? आपके पास इक्वेशन कहाँ से आ गया, कौन से इक्वेशन में हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं प्रेशर के इक्वेशन में, प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू 2/3 e, let e is for kinetic energy, ठीक है, but we know pv is constant, ठीक है, pv is equivalent to, if n is equal to 1, pv is equal to rt, pv is equal to rt, ठीक है, pv is equivalent to rt, तो 2/3 e, नहीं यहाँ से एक वॉल्यूम मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ये वॉल्यूम 2/3 e by v, तो pv is equivalent to 2/3 e, ये इक्वेशन है हमारे पास, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यहाँ भी वॉल्यूम डिवाइड होगा, वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम यहाँ आएगा, ये वॉल्यूम यहाँ आया, और ये रो को m by v लिखे, एनी डाउट हियर, छोटा सा इक्वेशन है लेकिन मैम थोड़ा फिर दिक्कत है। हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की बोलते हैं। आए है ना, थोड़ा वेट तो करो, pv इज इक्वल टू rt, तो pv में rt लिख दो, आपके पास इक्वेशन क्या आ गया, 2/3 e इज इक्वल टू rt, 2/3 e इज इक्वल टू rt, तो व्हाट इज e, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 3/2 rt, तो ये एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, half m into v square is equivalent to 3/2 rt. This is kinetic interpretation of temperature. दो हाथ को रब, ये इसको रब करो, you will feel heat. दौड़ के आओ, your body temperature will be moved. Kinetic energy temperature के साथ जो लिंक है, इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है kinetic interpretation of temperature. Is it okay now? Kinetic interpretation of temperature आ गया. E is equal to 3/2 rt. The formula with us is E is equal to 3/2 rt. क्या है, E is equal to 3/2 rt, क्या क्या, this is kinetic energy of 1 mole of gas, right on, kinetic energy of 1 mole of gas, n is equal to 1 लिए थे, P is equal to rt लिए थे, kinetic energy of 1 mole of gas, तो E is equivalent to कितना, 3/2 rt, ये for 1 mole of gas, ठीक है। अगर इसमें से हम मैम जो काइनेटिक एनर्जी, यस टेल मी, मैम जो आपने लिखा है हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 rt, मैम उसमें vb स्क्वायर मीन वेलोसिटी है, हाँ v स्क्वायर तो वही स्टार्टिंग से वही चल रहा है, आप एम स्क्वायर 3/2 rt में v स्क्वायर तो हम स्टार्टिंग से वही लिखे हैं, उसको कुछ चेंज यहाँ पर नहीं आपने रो को जब m/v किया तो वो तो वॉल्यूम था, फिर आपने ये काट कैसे किया, हाफ mv स्क्वायर कैसे आया एक बार और बता दो। अभी तो आपको समझाए, क्या दिक्कत क्या है, p इज इक्वल टू 1/3 रो v स्क्वायर, ये v स्क्वायर आया समझ में, तो रो को मैंने क्या लिखा, मास बाय वॉल्यूम, यहाँ अलग से v आया, वॉल्यूम कैपिटल v, और यहाँ v स्क्वायर, यहीं से वॉल्यूम आया, pv आ गया 1/3 mv स्क्वायर, तो 1/3 को मैं 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया, हाफ mv स्क्वायर ले लिया, अंडरस्टूड, सिंपल Okay, मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन कभी स्ट्राइक नहीं करता एक्चुअली, बच्चे नहीं कर पाते काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ए इज इक्वल टू 3/2 nt को अगर मैं ई बार लेती फॉर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन इट इज ई बार इज इक्विवेलेंट टू ई डिवाइडेड बाय एन, ई डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो 3/2 r डिवाइडेड बाय n t, तो मेरे और एक इक्वेशन आ गया,
3/2 kb, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T, 3/2 kBT, ठीक है। दिस इज मीन काइनेटिक एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल, मीन काइनेटिक एनर्जी, ये जो है ई बार, इसका नाम है मीन काइनेटिक एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल। Mean kinetic energy for molecule, this is the value. Kinetic energy of 1 mole of gas is 3/2 RT, ठीक है। इसमें से v स्क्वायर की वैल्यू निकालो, फिर v स्क्वायर की वैल्यू निकालो। आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 RT। तो v स्क्वायर कितना होगा, हाफ m v स्क्वायर इज 3/2 RT। RT by m। So v square is equivalent to under root 3 RT divided by m, ठीक है। This v square जो under root 3 RT by m ये होता है, इसको ये होता है RMS velocity, v RMS velocity RMS, v RMS is equivalent to v square के under root, v square v is equivalent to, that is equivalent to under root 3 RT by m. This is your RMS velocity of molecules. RMS क्या है? Yes, what is the full form of RMS? No idea. Root mean square. बच्चे इसको रेलवे मेल सर्विस बोलते हैं, but it is root mean square. VRMS. आपके पास next formula we are having VRMS, that is equivalent to under root 3 RT divided by m. इसका 3 फॉर्मूला है। अगर मैं इसको केबीटी में लेना चाहती हूँ, अगर इसी को मैंने केबीटी में लेना चाहती हूँ तो क्या हो जाएगा, एस एनीवन, VRMS केबीटी में अगर लेना चाहती हूँ, बताओ, 3 kBT by small m, this is 3 kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T divided by small m under root। अगर मैं इसको और एक फॉर्मेट में लिखना चाहती हूँ, that is your 3 PV by capital L। RMS velocity in 3 different, जो दिया हुआ है इक्वेशन में वो निकालो, 3 PV by m, this is your RMS velocity, VRMS root mean square। root mean square आपको कैसे निकालते हैं, VRMS क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस Vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर रूट, रूट मीन स्क्वायर अंडर रूट और रूट मीन स्क्वायर, है समझ में। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस Vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला आपको साइड में दिया हुआ है। दिस इज योर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी मोर और लेस, टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी मोर और लेस, मोर। तो इसलिए टेम्परेचर का डेफिनेशन है, इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर के डेफिनेशंस पहले भी हम दिए थे, इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। पहले हम डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस लिए थे, उसके साथ आप लिख सकते हो इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। टेम्परेचर 0 होता है तो आरएमएस स्पीड क्या होता है, एब्सोल्यूट 0। टेम्परेचर जब 0 होता है, टेम्परेचर जब 0 होता है, VRMS is 0 is, when temperature is 0 VRMS is 0। थर्मोडायनामिक्स में हम आपको कितना लॉ करवाए हैं, इस एनीवन, थर्मोडायनामिक्स में कितने लॉ करवाए हैं, 0th लॉ, मैम 3, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हम नहीं करवाते हैं, कहीं हमारे बुक में भी नहीं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इज एनीवन हु नोज, थर्मोडायनामिक्स में एक्चुअली 4 लॉज होते हैं, बट योर सिलेबस हैज गिवन 3 लॉज। थर्ड लॉ होता है absolute zero is unattainable, absolute zero is unattainable, absolute zero टेम्परेचर तक आप जा नहीं पाओगे, ठीक है। unattainable by a system, absolute zero is unattainable is the third law, but that is not in our syllabus, ठीक है। RMS वेलोसिटी की फॉर्मूला आपके सामने आ गया काइनेटिक इंटरप्रिटेशन के साथ। RMS वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, आपको क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा।
ठीक है? Yes. You are given molecules of a gas which 2, 4, 6 and 8 kilometer per second. Molecules of a gas are given to you in these numbers 2, 4, 6 and 8 kilometer per second. सारे kilometer per second में हैं. Find the RMS velocity. You are given 4 molecules जिनकी speed से 2, 4, 6 and 8. You have to calculate their RMS speed. Yes, anyone who can tell me? RMS speed कितना होगा? Ma'am, V RMS is equal to under root of V1 square plus V2 square plus तो V3 square. करके बताओ. V1 Formula is there. Same formula. You can find it. 2 square plus 4 square plus 6 square plus 8 square divided by 4 under root. How much you are getting? You have shown me the procedure. Tell me how much you are getting. 2 square plus 4 square plus 6 square plus 8 square. आ रहा है किसका आंसर? नो. Root 30. The Under root answer is 30. root 30. Under root 30. Root You can 30. write here kilometer per second. ठीक है? RMS velocity के equations you are having. मतलब questions you are having. Formula is here. सारे RMS velocity. Do the second one. Second one में दिया हुआ है. Calculate the RMS velocity of oxygen at STP. Calculate the RMS. Write down the question. Calculate RMS velocity of oxygen at STP. STP क्या है? STP जो केमिस्ट्री वाला Standard लिखते हैं temperature उसका and मतलब क्या है? pressure. Pressure है. Standard temperature and pressure. Okay. Calculate the RMS velocity of oxygen at STP. Molecular weight of oxygen कितना है? That you should know. Dioxygen 32. Molecular weight of 32. Very good. Molecular weight of oxygen. आपको given. ये कुछ भी नहीं देंगे हम. Molecular weight of oxygen. That you have to take 32. और क्या चाहिए आपको? What is the formula? Formula आपके पास 3 PV by MB है, 3 RT by MB है. ये RMS आपको फाइंड आउट करना है. 3 PV by M, कैपिटल M. ठीक है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में प्रेशर कितना है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में 1 प्रेशर कितना है? atmospheric. 1 atmospheric. 1 atmospheric प्रेशर को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए. प्रेशर इज 1 atmospheric. 1 atmospheric का कन्वर्सन याद होना चाहिए. 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. ये पूरे रटा होना चाहिए. 1.013 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर. वॉल्यूम होता है आपके पास 22.4 लीटर. फाइंड आउट द वैल्यू. वॉल्यूम आपके पास होता है 22. ये सारे कहीं गिवन नहीं होगा. मैम ये दिया नहीं रहेगा. नहीं, ये कुछ भी नहीं दिया जाएगा फिजिक्स में. -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 10 to the power -3. नहीं, ये तो खाली मीटर क्यूब में है. नो, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब नहीं. इट इज ओनली इन मीटर क्यूब वॉल्यूम. बताओ व्हाट इज द आरएमएस स्पीड. प्रेशर यू आर ऑलरेडी देयर. वॉल्यूम यू आर ऑलरेडी देयर. मास आल्सो यू आर देयर. 32. बताओ 32 ग्राम था. नहीं, उसको केजी में लेना पड़ेगा. सारे कन्वर्शन चार्ट आपको लेना पड़ेगा. टाइम लगेगा. 32 into 10 to the power -3. ये केजी में हो गया. ये किस में है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. ठीक है, ये मीटर क्यूब में. ठीक है. नाउ ready to apply the formula and do the calculations. Under root 3 PV by M. मैम अंडर रूट 2.37 आ रहा है. अंडर रूट 2.37. मेरे पास फाइनल आंसर है वो है अंडर रूट 461.23. You can verify 461.23 meter per second is the RMS velocity.
थोड़ा कैलकुलेशंस करते जाओ, साइड में मोबाइल में कैलकुलेशन कर रहे थे 12th क्लास के बच्चे फिजिक्स के एग्जाम में, इसीलिए टाइम ज्यादा लग गया। मोबाइल कैलकुलेशन छोड़ दो, ठीक है। मोबाइल में अगर कैलकुलेटर्स के थ्रू में आप कैलकुलेशंस कर रहे हो तो आपका न्यूमेरिकल जो एप्टीट्यूड होता है ना वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल भी बच्चों को याद नहीं है, 15 into 5 बोल दो, दे विल स्टार्ट यूजिंग कैलकुलेटर और टेकिंग पेन एंड पेपर। फिजिक्स होता है मेंटल मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है। 12th क्लास बच्चों के साथ जो रियल प्रॉब्लम है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, you should increase your practice with calculations। बार बार कैलकुलेशन करते जाओ। आईआईटी वाले बच्चे साइड में सुडोको करते हैं क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा होता है। कैलकुलेशंस को हमारे दिमाग में प्रैक्टिस करना है, पता आपको फ्यूचर ओल्ड एज में अल्जाइमर्स डिजीज के लिए भी लोगों को कैलकुलेशंस दिया जाता है करने के लिए, छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया जाता है। क्योंकि आप जैसे रफेज खाते हो, कुछ हार्ड चीज खाते हो, to smooth, to make your digestive system active, to make your teeth active, greenery देखते हो to make your eye active। तो ऐसे ही कैलकुलेशंस करते हो तो ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए। ओके, एनीवन हु इज डूइंग कैलकुलेशंस इन पेन एंड पेपर? Aryan, are you Ma'am. doing using pen and is it coming 461.23? मैम यहाँ पे हम Yes, ma'am, अंडर आ रूट गया था। 3RT बाय एम भी लगा सकते थे ना, टेम्परेचर को 273 461 लेकर। 462 आ रहे, नहीं 461 आ- 461.24 हाँ ठीक है, ठीक है। दैट इज विथ कैलकुलेटर, यस और नो? कैलकुलेटर के नो थ्रू मैम विदाउट कैलकुलेट मैम मैंने एस्टिमेशंस calculator। लेके करी है। अच्छा ठीक है, तो एस्टिमेशंस में आपको क्या लेना है और कितने जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हो? 3RT 3PV में आएगा। हिमांशु, RT क्यों ले रहे हो? आपके पास 3 प्रेशर आपका 1.013, मैं इसको सीधा 10⁵ ले लूं। PV कितना है, वॉल्यूम मेरे पास कितना है 22.4, इसको तो 22.4 लेना पड़ेगा, 10⁻³ 3PV डिवाइडेड बाय मास कितना था 32 into 10⁻³ मैम यहाँ पे -3। एसटीपी है तो टेम्परेचर तो हम 273 केल्विन लेके और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू करो जूल पर करो मोल पर करो। केल्विन। अरे हिमांशु लेके करो, किसमें इजीली आ रहा है, आपको सिर्फ इजियर और क्विकर मेथड देखना है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। तो इसमें बताओ सारे 10⁻² को पहले इकट्ठे कर दो, 5 - 3 2 +2 +3 10⁵ तो यही है, ठीक है। ये 10⁵ हो गया, 10 हट गया, तो इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करो, 22.4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करके 30 को डिवाइड करो। कितना तो कैलकुलेशन सब कर सकते हो, नहीं तो 3 को 32 में अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना होता है, 333 में जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली ये मेरा 11 आएगा। 11 आएगा तो 2 आएगा, 4 नहीं आ रहे हैं, तो इसका अंडर रूट भी लेना पड़ेगा ना, इसका अंडर रूट भी लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली मेरा अगर 11 है तो 11 2 जा 22, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा। तो वन वाज टेलिंग, तो उसके अंडर रूट ले लो, 460 तो आ ही जाएगा इस मेथड में। तुम्हारे 3RT/m में कितना आ रहा है वांशु? व्हिच वन इज क्विकर? Under root 20 into 100 हाँ लेकिन अंडर रूट के बाद 400 तो दिखाई जा रहा है, 20 आ रहा है मतलब 200 आ रहे हैं, राउंड दिखाई जा रहा है, 400 समथिंग आएगा। और एक क्वेश्चन टेम्परेचर बेस्ड है, सेम पैटर्न क्वेश्चन टेम्परेचर बेस्ड, ठीक है। At what temperature is the RMS velocity of hydrogen equal to that of an oxygen molecule at 47 degrees Celsius? Again, at what temperature is the RMS velocity of hydrogen is same as of oxygen?
मैम अप्रोक्स में उसके इक्वल ही आ रहा है, 463 के करीब आ रहा है। हाँ तो ठीक है, यू टेक दैट मेथड, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी है। नो मैम इसमें हमें कन्वर्जन Calculation की easy ज्यादा जरूरत नहीं थी, बस मास को केजी में करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर इज द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन? 80 केल्विन। आरएमएस 80 केल्विन आंसर सही नहीं है। एट व्हाट टेम्परेचर इज द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस? 273 ऐड कियो क्या? यस मैम। तो फिर 80 कैसे आ गया? आपको वी आरएमएस √3 RT by M, तो इसमें 3 R T को आप T + 273 लोगे, 47 + 273, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास। डिवाइडेड बाय मास में आपका ऑक्सीजन का 32, ठीक है, ये तो कट ही जाएगा 32 नीचे। थ्री R 47 200 होगा। + 273 200 एक मिनट केल्विन में कितना है? अरे 32 को कन्वर्ट मत करो ना, RT तो ऐसे ही है। आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मैम 200 हाइड्रोजन केल्विन आ रहा है। 20 200 होगा। केल्विन, अरे 20 20 केल्विन है, 20 केल्विन है आंसर। दिस इज इक्विवेलेंट 20 केल्विन। द करेक्ट आंसर इज 20 केल्विन। 200 यस में मैम मिल 20। जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 20 केल्विन। आर्यन, आर यू लिसनिंग? आ रहा है 20 केल्विन? आर्यन 20 केल्विन आ रहा है Yes, क्या? ma'am. Calculate the temperature at which RMS velocity of a gas is half of its value at 0 degree Celsius. Again, I am reading the question. Calculate the temperature at which RMS velocity of a gas is half its value at 0 degree Celsius. RMS velocity of a gas is half of the RMS velocity at 0 degree Celsius. आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, कितना टेम्परेचर में एक गैस का आरएमएस वेलोसिटी उसी गैस का आरएमएस वेलोसिटी के साथ 0 डिग्री सेल्सियस वाला आरएमएस वेलोसिटी के हाफ होगा। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। 68 क्वेश्चन में आपको प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। कौन यू आर नॉट आंसरिंग ए सिंगल क्वेश्चन। आरएमएस वेलोसिटी फार्मूला देखिए, करवा रहे हैं। V RMS V/2 60 डिग्री नहीं है, आप केल्विन में बोलो, 60 केल्विन बोलो। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना कि क्या कंडीशंस थी? केल्विन बोल रहा मैंने। क्वेश्चन में एक बार सुन लो। प्रेशर कांस्टेंट है हिमांशु, प्रेशर इज कांस्टेंट। यू हैव टू फाइंड द टेम्परेचर एट व्हिच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ए गैस इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। V RMS is V/2, V होता है RMS velocity at 0 degree Celsius. I am writing the question here. V RMS is V/2. RMS velocity of a gas is half of its speed. So V is RMS at 0 degree Celsius. 0 डिग्री सेल्सियस में RMS वेलोसिटी का वैल्यू V है, ठीक है। आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा। एट व्हाट टेम्परेचर? 68 केल्विन है क्या मैम? मेरे पास आंसर है 68 + -273 कितना आ रहा है? हाँ मैम वो डिग्री सेल्सियस में होगा, मैंने केल्विन में 68। हाँ केल्विन में 68 मुझे लग रहा है करेक्ट आंसर, लेकिन डिग्री सेल्सियस में एक बार बता दो। 2034 आ रहे हैं ना, 68 + 4 273, 273 - 68 कितना? 205 -205। 20, हाँ -205 अप्रोक्सीमेटली।
The correct temperature is minus 204.75 degrees Celsius. Minus 205 degrees Celsius is acceptable. भी RMS 80 डिग्री सेल्सियस हो रहे नहीं हिमांशु, तुम्हारे मेथड में हो रहे RMS स्पीड केल्विन में होती है 68.25 आ रहा है। हाँ 68.25 है, ठीक है चलेगा। केल्विन में 68.25 भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। RMS स्पीड इज इन सिलेबस, लेकिन पहले हम क्या कराते थे पता, हमारे पास 3 स्पीड था। एक होता है V एवरेज, एक होता था V RMS, एक होता है V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो आपका अभी कॉम्पिटिशन्स में है, सीबीएसई में नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये तीनों का फॉर्मूला लगभग सेम था। हम तीनों के इक्वेशंस, तीनों के न्यूमेरिकल्स बहुत ही करा रहे थे, लेकिन अभी आपका V एवरेज है। V एवरेज में सारे में आपका 8 आ जाए, ये आपका 8 PV डिवाइडेड बाय पाई टर्म 8 PV बाय पाई m, ठीक है। जहां V एवरेज आएगा 8 PV बाय पाई m, 8 kBT बाय पाई m, ये दिस इज इक्वल टू 8 kBT डिवाइडेड बाय पाई इनटू स्मॉल m, ऐसा आएगा। फिर 3 RT, ये 8 RT हो जाएगा, 8 RT डिवाइडेड बाय पाई m। ये कहीं स्मॉल m है, कहीं कैपिटल m है, वो आपको देखना पड़ेगा। 8 RT बाय पाई, RT में कैपिटल M है, RT में कैपिटल M है, यहाँ कैपिटल M है और यहाँ स्मॉल m है। ये तीनों फॉर्मूला किसका है? V एवरेज का। V RMS वी हैव ऑलरेडी गिवन, सारे 3 में है। मोस्ट प्रोबेबली में आपके पास 2 में है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में सेम इक्वेशन है, लेकिन सारे आपके पास 2 में है। 2 kBT by m, इसमें पाया नहीं होगा। 2 kBT by m, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तीनों का कंपैरिजन आ रहा था कैपिटल M होगा ना, किसमें? नहीं, 2 RT by कैपिटल M, 2 RT जहाँ आएगा वो कैपिटल M है, यहाँ पाए नहीं है, और 2 PV डिवाइडेड बाय कैपिटल M रहेगा। PV और RT के साथ कैपिटल M होगा, KB के साथ स्मॉल m आएगा। ये तीनों हम लोग इक्वेशंस लिखवाने के बाद कुछ भी क्वेश्चंस दे रहे थे, तीनों स्पीड निकालने के लिए बोल रहे थे, ठीक है। अभी लेकिन सीबीएसई ने बोला कि नहीं, तीनों पढ़ाने की जरूरत नहीं है, यू टीच ओनली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वी हैव डन। देन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज द स्मॉलेस्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक, only one period is left, degrees of freedom। तो मैम सिलेबस में मैम एवरेज और एमपीएस नहीं आएगा, इसलिए तो आपको बोल रहे हैं, हम लोग सिर्फ आपको सिलेबस कॉपी करके दिए हैं। सीबीएसई के सिलेबस देखो, cbse.nic.in में जाओ, उसके एक करिकुलम आता है, वो करिकुलम के अंदर इलेक्टिव आता है। मैं आपको पूरा सिखा रही हूँ। आपको ओरिजिनल सिलेबस कहाँ से मिलेगा? cbse.nic.in, स्मॉल लेटर में cbse.nic.in, इसके अंदर जाओ, एक जगह करिकुलम लिखो। क्लास स्टार्ट हो गया है मैंने स्टार्ट हाँ कर दी आज की। यस मैम। वेट, एक मिनट रुक जाओ, उसके बाद सिलेबस में जाओगे। सिलेबस में इलेक्टिव ग्रुप्स आएगा, इलेक्टिव ए, इसके अंदर आपको फिजिक्स में आओगे, सब्जेक्ट आपका आएगा, इसमें फिजिक्स में आओगे, उसके बाद डाउनलोड करोगे। जो सिलेबस लिखा है वही एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस बहुत है, चाहे एनसीईआरटी बुक है चाहे दूसरे बुक है। आउट ऑफ सिलेबस वी आर हैविंग मेनी थिंग्स, बट इन सिलेबस वी आर हैविंग वेरी few topics. Okay, you can leave the class now. मैम could you please get a side? Excuse me, ma'am. आपने बोर्ड पे लिखा है। cbse.nic.in, curriculum, then elective subject. You can join that class. एक्सक्यूज मी मैम। Yes, tell me. मैम जो मैंने फॉर्मूला लगाया था अंडर रूट 3 RT बाय m, तो मैम इसमें जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किस में लेना है, मतलब जूल पर मोल पर केल्विन में या फिर कैलोरीज में? क्योंकि इसमें मास अगर हम केजी में लेंगे तो जूल्स पर केजी में लोगे ना, बट मैम उसकी जूल्स पर कांस्टेंट केजी की में वैल्यू तो दो ही होती है ना, आई थिंक 8.314
पर जूल पर मोल पर केल्विन और एक कैलोरीज में होती है, उसमें केजी का तो कुछ होता ही नहीं, तो जूल्स पर मोल ले लो, जूल्स लिखा हुआ है ना, दैट इज एमकेएस। जूल्स और कैलोरी अल्टरनेटिव है ना, यू कैन टेक जूल्स। मैम ना फिर इसमें हम मास ग्राम में लेंगे या फिर केजी में लेंगे, जो 3RT/m है, तो m मास ग्राम में या केजी में? मास ऑफ केजी में लोगे, इफ यू टेकिंग जूल्स यू विल टेक मास इन केजी। ओके, ओके मैम। जहां जहां जूल्स दिखाई जाएगा वहां केजी, वो एमकेएस सिस्टम होगी। ओके मैम। Okay, can leave the class now.